Okay, so I think it's good time to start now. Good to see such nice number. Okay, fine. So, good afternoon, everyone. I hope you all are doing great. First of all, thank you very much for being here today. My name is Anjina, and today's workshop, From Rejection to Recruited, is proudly organized by Infinity Personality Development. And before we officially begin, I want to ask something very honestly. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया बट कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आया? नो कॉल्स, नो ईमेल्स, जस्ट साइलेंस. और मे बी कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं. वी डोंट नो द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट. सबके साथ होता है ऑब्वियसली. दैट्स एग्जैक्टली वेयर मोस्ट पीपल गेट स्टक. हमें रीजन ही नहीं पता होता है. अगर हमें रीजन पता चले तो शायद हम उस चीज पे काम करें. So here today, this session is just not just about motivation. This session is about strategy कैसे बनानी है. आपको उसकी strategy समझनी पड़ेगी. By the end of this workshop, you will clearly understand why you are getting rejected, what companies actually look for, and how to position yourself so that they choose you. Correct. So let me share something with you guys. एक स्टूडेंट था, सेम डिग्री, सेम स्किल्स, बट 50 एप्लीकेशंस के बाद भी जीरो रिस्पॉन्स. एंड व्हाट एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, ही स्टार्टेड डाउटिंग हिमसेल्फ कि शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, मैं इतना केपेबल नहीं हूँ. एंड दीज काइंड ऑफ थॉट्स स्टार्ट कमिंग अप ऑनटू योर माइंड. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट. तो हमने जब उस स्टूडेंट की एक स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज किया, हमने उसका रेज्यूमे अलाइनमेंट किया, क्लियर पोजीशनिंग की, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन किया उसका. एंड गेस व्हाट, विद इन 2 weeks 5 calls, 3 emails and 1 offer letter. That is where the game changed. Some some persons, don't even know how to keep themselves in front of the interviewer. Here what happened, we just changed the strategy. Same skills, same person, but different strategy. So the real question here is, are you really unprepared or are you unqualified? These things make us doubt ourselves and our worth, right? So before we fix this, we need to understand the game here. Because जब game समझ नहीं आएगा तो आप जीतेंगे कैसे? Correct. Give me a thumbs up if I am making sense right now. Okay. So it's like many of us faced rejection or at least once in our lifetime. It could be an internship, placement or something else. Correct. हम rejection हमारी life का एक part ही होता है. But उसको deal करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा different होता है. हमें बस इतना करना है अपने ऊपर कि हम उन rejections को थोड़ा minimize कर सकें. Correct. So today I want to change that approach where you feel like you are unable to do something, या आपसे नहीं हो पा रहा, you are not enough. You just gotta change your perspective, because the truth is you are not getting rejected, you are just getting filtered. And once you understand this filtering system, you can start controlling the outcome. So let's get into it. You are not rejected, you are filtered. From rejection to recruited, the strategy behind every yes. You are not getting rejected because you are getting filtered for obviously the better reasons. Companies are not rejecting you, they are just filtering you based on the fit. आपको reject करना उनका कोई personal motive नहीं होता, but you need to understand the reason behind those rejections. तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच हो सकती है. सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट इट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिस्टम. Here on the screen, you can see on this slide the brutal mathematics of hiring. Correct. You heard me right. Brutal. Why am I using the word brutal here? Because it is.
आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा. So today I will explain you the system of hiring so that you can make yourself better. अब आप सोच के देखो, किसी भी एक जॉब के लिए 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव करती है कोई भी कंपनी. You are not the only one who is applying. There are number of applications that a company receives. Do you agree with it? Yeah, of course. But what happens? Do you think recruiter के पास इतना time होता है that they spend time on each and every resume? Imagine, I am being very honest with you, they on an average will only give 6 to 8 seconds per resume because they have plenty of applications. They are on an average giving 8 to 6 seconds per resume, out of which only 3 to 5 get shortlisted. You see the number? 100 applications में से सिर्फ 3 to 5 get shortlisted. Yani 95% of the people are getting filtered out. So the question is not why am I getting rejected? The real question is why am I not in the top 5? It's not always about most skilled people. It's not only about the toppers. It's the person who is most clearly presented. आपकी values, आपके skills, आपकी achievements, all those things are not primary. Primary is that how beautifully you are presenting yourself. Correct. It's the person who is most clearly presented and who can catch the recruiter's eyes very quickly. It's the race between that, not between your values and skills and your achievements, because you got to prove it. The recruiter does not ask you for claims. He wants to see the proofs that whatever you are mentioning in your CVs, is that even true? Right. Okay. So recruiter के पास time नहीं होता obviously guess करने का. उनको चाहिए clarity instantly. अगर उन्हें समझ नहीं आया कि आप क्या करते हो, they will just move on. Now let me explain you this with an example. All right. Let's say there are 2 resumes with him. एक resume है जिसमें mention कर रखा है very basic general things जो हम सब mention करते हैं, like I am hardworking, I am passionate, or I am a quick learner. On the other hand, दूसरे resume में student ने थोड़ा specify कर रखा है कि what actually he does. And for example, he says that I built 2 projects using Python and improved efficiency by 20%. Now tell me, which one stands out? Which one do you think stands out? The first one or the second one? Second, right? Exactly. The first one was very generic, while second one was specific. In second one, he mentions what he actually does. जो recruiter को actually जानना था. That is what he mentioned. So obviously the impact is more. Okay. So since you guys are Gen Z, so you will explain this. I can explain you this with one more example, and I guess you will understand it more. आप ऐसे देखो कि जो resumes है, it's like scrolling reels. Okay. Recruiter जो आपके resumes shuffle करता है, वो एक reels की तरह उसको देखता है. Okay. First resume, boring, swipe. Correct. Second, unclear, swipe. Third, irrelevant, swipe. Fourth, relevant, stop. So now that stop is your goal. अगर आप खुद सोचो, अगर आपको किसी रील में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, you would not watch it. You will just move on to the other one. Similarly, the recruiter sees that this as reels only. अब आपको समझ में आएगा कि जितना ज्यादा इम्प्रेसिव होता है, उतना ही टाइम रिक्रूटर उस चीज को देना चाहेगा, अदरवाइज उसका कुछ नहीं जाएगा. He will just skip it to the another one. So you gotta make sure that your resume is that reel which catches the attention. Selection का मतलब बेस्ट होना नहीं होता, सिर्फ विजिबल होना होता है, क्लियर होना होता है. Hiring is not emotional and we got to understand that. Recruiters आपको नहीं जानता. So decision कैसे होता है? Obviously based on what is visible in seconds.
You are not competing on talent anymore. You are competing on clarity. So now the question becomes, how do we make ourselves clear, visible, and selected? Because that's exactly what's gonna change your game, and we are here to fix it next. So, how are we going to fix this now? Now that we have understood the system, let's talk about the real problem. Most of the students think competition ज़्यादा है इसलिए रिजेक्शन हो रहा है. Isn't? आप लोग ऐसा सोचते हो ना कि कंपटीशन इतना हाई है इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं रिजेक्ट हो गया. बट reality is different. Do you think you are getting rejected on the basis of the competition higher and like that? Just give me a yes or no in the chat box. Okay, but you know what? Let's break this myth. Problem arises when there is no personal positioning. First problem. This is the very first problem that comes. No clear personal positioning. सिंपल वर्ड्स में आपको खुद ही नहीं पता कि एग्जैक्टली आप क्या हो. लेट मी आस्क यू समथिंग. ओके, I'll ask you right now, tell me about yourself in one line. Okay, can you answer that instantly? Just say yes or no, or just give me a reaction. If I ask you, tell me about yourself in just one line. Now imagine if you cannot do that you cannot define yourself, recruiters cannot remember you either. अगर आप अपने ही बारे में उनको नहीं बता पा रहे हो तो फिर रिक्रूटर क्यों ही बताना चाहेगा, या why would he want to know about you? Most people say I am hardworking, I am passionate, I am quick learner, but honestly ये सब सुन के किसी को क्या समझ आ रहा है? Isn't? If you sound like everyone, you will be treated like everyone. Correct? So this is one of the problem that we face. Another one is resume not aligned. There are 4 problems in actual, and we are putting this in front of you. In the next slide, you can see there are 4 problems. I will talk about each one of them, and you will have to analyze that which one is yours. So now it's like we were talking about resume not aligned with the job description. When your job resume is not aligned with job description, that is a problem. अब सोचो, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपके रेज्यूमे से अलाइन नहीं कर रहा, बिकॉज आपका रेज्यूमे बहुत बेसिक है. आपने एक रेज्यूमे क्रिएट कर लिया और अब आप वो सेम रेज्यूमे सारी जगह पे लगाते हो. यू आर यूजिंग द सेम रेज्यूमे इन एवरी जॉब. दैट इज द प्रॉब्लम. आप ऐसे समझो, हर कंपनी का या हर जॉब पोजीशन को जो एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, इट वर्क्स लाइक अ क्वेश्चन पेपर. एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन सेज डिफरेंट स्टोरी, यानी कि क्वेश्चन की तरह, एंड यू आर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस द सेम वे. द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क देयर. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पाइथन का और आप आंसर में C++ का लिख के आ रहे हो, विल यू गेट मार्क्स? Yes or no? No, right. Same happens in hiring. अगर आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और आपका जो CV है वो अलाइन नहीं कर रहा, then you are automatically rejected. So you need to modify your CVs, you need to modify your resumes according to the job descriptions you are applying. Using that one same resume everywhere will serve you nothing. That's exactly why most resumes are getting rejected. Point number 3, communication weak, lack of structure, weak communication. Now let me clarify this. When I'm talking about weak communication, communication does not only mean speaking in English. It's about how clearly you express your thoughts. Many students know the answer, but explain it in a confusing way. आपको इंग्लिश आती है, you are answering it in English, thinking that आपने जो communicate किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है. But it's just not about English. Your communication should also include structure. It should be structured.
Many students know the answer but explain it in confusing way. Like if the interviewer asks you, tell me about yourself, and the student say, sir, basically, actually, I mean, all these things are making you confusing. They make you look underconfident and confused. Confidence वहीं खत्म हो जाता है, because messy answers equals to weak impression. Understood? So you should always structure your answers in such a way that the communication becomes more effective. You just don't only have to communicate in English, you have to make your communication look structured. Moving on, the last one says lack of specific interview practice. Fourth problem, and very common. No proper interview practice. Students prepare, but कैसे? आपको लगता है कि आपने प्रिपरेशन की है, बट कैसे? दे थिंक इन देयर हेड कि अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया है तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है, बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. इन रियलिटी इंटरव्यू इज not about thinking in head, it's about performing. Interview is not thinking, it is performing, and we need to understand that. एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. आपने कभी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है? मॉक इंटरव्यूज यू अंडरस्टैंड फॉर द प्रैक्टिस वन. अगर आपने मॉक इंटरव्यूज नहीं दिया तो रियल इंटरव्यूज में प्रॉब्लम और प्रेशर आएगा ही, बिकॉज you don't rise to your knowledge, you fall to your level of practice. आपकी नॉलेज है, काफी अच्छी नॉलेज है आपको, आपके पास स्किल्स हैं, सब कुछ है, बट you are unable to put it together because there is lack of practice. And there is a huge difference, I'm telling you. आपने जो सोचा है और आप जो कर रहे हो, if you are not practicing, it is of no use. No matter how knowledgeable you are, you still have to practice. आपकी जो नॉलेज है वो तभी आपके लिए यूजफुल होगी जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे. So next time when someone faces this rejection, don't say मेरे साथ ही क्यों होता है. Instead, just ask yourself which of these 4 problems are causing it. Now, you all can read all these problems and then analyze for yourself कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है. इन चारों में से कौन सी चीजों में आपको प्रॉब्लम हो रही है. You have to analyze it for yourself. And again, I'm telling you, don't take rejections personally. Diagnose it professionally. Recruiter आपको नहीं जानता. अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो never feel like this is something personal. It's just that you are unable to express yourself and their recruiter is not understanding you because you are not clear. So don't take it personally, just diagnose it professionally. So we have understood the problem now. No clarity, no recalls, no selection. Now let's talk about the antidote. Record, review mock interviews, get 2-3 external feedbacks. This is very important. Don't describe yourself, just define your value. आप सिर्फ खुद को डिफाइन मत कीजिए, आप अपनी वैल्यू को एक्सप्लेन कीजिए. Then only it will work. Most people talk about themselves, but the smart candidates, they talk what they can do. अब आप क्या कर सकते हो उसको ये बताओ, उसको नहीं जानना इसके अलावा कुछ भी, आप उसको ये बताओ कि आप क्या कर सकते हो. First thing you should start doing, record your mock interviews. And again, our team of Infinity Personality Development is always there to help you with it. Just go for attend the mock interviews. You have any problem, just talk to us and just let us know what are you facing. Because we not only judge you by saying it was good or it was bad, we give you the actual solutions. We are always ready to help you. And when I'm saying get 2 to 3 external feedbacks, you can have those feedbacks from us as well. Because in this, you need genuine feedbacks. Your own judgment for yourself is not enough. You need some external feedbacks so that you can improve yourself. Now, again, practice, just understand this thing. Practice plus feedback
इज इक्वल्स टू इम्प्रूवमेंट. जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप फीडबैक्स लोगे, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन. आपको किस चीज पर काम करना है, किस चीज को इम्प्रूव करना है, एंड दैट्स वेयर यू मेक योरसेल्फ बेटर एंड योर चांसेस ऑफ रिजेक्शन गेट्स डिमिनिश. You don't become confident by thinking, you become confident by training. So train yourself. So now we have understood where the problem is और उसको improve कैसे करना है. But even after all this, एक mistake अभी भी रह जाती है. Most students still present themselves like an average candidate. So now let's move to the next part, that is how we can fix it. Stop being the average candidate. On the screen, you can see there are two images. I am looking for a job, and the other one is like, I am so ready for the job. This is where it makes the difference. Why do most students still get selected even after preparing? Now, ये question भी आता है कि हमने बहुत practice की थी, but still we got rejected. So what is the reason behind that thing? This is because they present themselves like everyone else. जो सारे लोग कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, you all will get rejected then. If you look like everyone, you will be treated like everyone. Correct? So let me show you a simple difference. Okay. I am looking for a job. This is shown to you because in this one, you are looking more like a job seeker. But you don't have to look like a job seeker. You have to tell them why you need to be there, why you deserve to be there, and also what value you can add. इंटरव्यूअर को आपको सिर्फ ये नहीं दिखाना कि आप वहां पे जॉब सीकिंग के लिए आए हो, आप उनको ये दिखाओ कि आप उनकी कंपनी में क्या वैल्यू पुट ऑन कर सकते हो. आप उनको ये चीज एक्सप्लेन करो, नॉट जस्ट क्लेम, जस्ट प्रूव देम. ओके, सो on the other hand, you can see this image. In this, the person is trying to show how ready he is. अब आप एक सिंपल सी चीज सोचो, आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आप इंटरव्यूअर को अगर सिर्फ ये दिखाओगे दैट आई एम हियर फॉर द सेक ऑफ जॉब, आई जस्ट वांट टू बी एम्प्लॉयड, एक तो ये सिचुएशन हो गई. दूसरी सिचुएशन में यू आर टेलिंग दैट यू कैन एड सम वैल्यू टू द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, you tell them, or you just mention that this is my achievement. I have in the past company, I have done this work which improved my skills and helped the company in this way. जब आप ये चीज उनको समझाते हो तब उनको खुद फील होगा कि you would be a good option for them. So you have to prove that. You just don't have to be there for the sake of job. Correct. Now you tell me, which one would you hire? I am looking for a job, or I can add some value to your company. It's just a game of psychology. आपको बस उनको खुद को इस तरीके से प्रूव करना है कि अगर वो आपको चूज करते हैं, that would not be a bad option. You just have to prove yourself, because companies don't hire need, they hire value, and we need to understand that. And this is the only way we can get into it. बिकॉज एक ऐसे समझो, एक एवरेज जो कैंडिडेट होता है, ही थिंक्स लाइक मुझे जॉब चाहिए, जस्ट जॉब चाहिए. बट जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है. वो ये सोचते हैं कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. Selection starts when your thinking shifts from job seeker to job to value provider. करेक्ट. आप उनको ये चीज दिखाओ कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो. योर स्किल्स प्लस योर रोल प्लस योर वैल्यू इक्वल्स टू प्रिसाइज पोजीशनिंग. यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन सच अ वे कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं, आपके जो रोल्स हैं, उन सब से आपकी क्या पोजीशनिंग प्रिसाइज होती है. योर स्किल्स, आप क्या कर सकते हो. योर रोल, आप किस जॉब के लिए टारगेट कर रहे हो. वैल्यू, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. कंपनीज को आप नहीं चाहिए, कंपनीज को सॉल्यूशन चाहिए.
प्रोवाइड देम दैट सॉल्यूशन। उनका आपसे कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है, सो यू जस्ट हैव टू शो देम व्हाई यू आर अ गुड fit for that job. Okay, so now you have to, again, you have to show the companies that what I bring. Don't ask for opportunities, just show them that you deserve one. And let me be very honest with you guys, companies are not impressed by degrees anymore. They want to see the value. Just define your skills, decide your target, and add what value you can add, and turn it into a strong line about yourself. So with this, we have understood very important part of the process: how to stand out, how to position yourself, how to present your value. But as we all know, selection सिर्फ यहीं तक limited नहीं होता. There's another important piece of puzzle: how to apply all these strategically in one word. So to take this forward, I'd like to invite my colleague Ashutosh, who will now guide you on the next part of the journey. गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपने इस वर्कशॉप पर फिर से आए हैं। एंजीना ने आपको काफ़ी सब कुछ बता ही दिया है इतने टाइम से, एंड आई थिंक इट्स राइट टाइम टू रिकॉल कि अभी तक हम कितना कवर कर चुके हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। सो अभी तक जैसा कि आपको पता है, हमने आपको बताया कि हायरिंग फिल्टर के बारे में, कि कैसे हम अपने आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे हमें आगे चल के काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। वो कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ फेलियर है, जैसे कि हमने देखा है कि कई बार हम जो होते हैं अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाते हैं। पोजीशनिंग मीन्स यू हैव द स्किल्स, बट आपने जो परसेप्शन बनाया है इंटरव्यूअर के सामने वो वैसा नहीं है जैसा आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद में स्टॉप बीइंग एन एवरेज कैंडिडेट, व्हाई आई एम नॉट इन टॉप 5, ये सब चीज़ें के बारे में भी सबसे ज़्यादा अभी तक हमने यहाँ पर किया, बिकॉज इट्स अबाउट द वैल्यू यू गिव। क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू करेंगे तभी आप वहाँ पर वैल्यू शो कर पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। वीक कम्युनिकेशन हो गया, सोल्यूशन प्रोवाइड हो गया, फीडबैक जो कि सबसे ज़्यादा बताया ज़रूरी। और इसमें एक चीज़ और थी जो कि एंजीना ने अभी तक आपको बताई, कि प्रैक्टिस प्लस फीडबैक इज इक्वल टू इम्पॉर्टेंट। You guys need to work on this very well. So coming forward, our slide that is the STAR method, जिसको हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। What is actually the STAR method? It is the situation, task, action and result. What I'm telling you about in this, कि इससे आप कैसे कर सकते हैं। सपोज कि आप, हम सबको पता है कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट स्टिल 90% ऑफ स्टूडेंट्स are not able to introduce themselves impressively. And why this happens? This is happens because हमने अपने जो इंट्रोडक्शन है उसको सही से स्ट्रक्चर ही नहीं किया है। So what is important? Structure your plan. या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं यहाँ पे। एक कैंडिडेट कहता है कि आई एम हार्ड वर्किंग, और एक कैंडिडेट अपनी जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उसमें उन्होंने अपनी स्किल्स को कैसे शो किया है वो सब करके बताता है। तो जो सेकंड वाला है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू टू से, कि आपको अपने यहाँ पर ये मेथड लगाना पड़ेगा, स्टार मेथड, क्योंकि स्ट्रक्चर बीट्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अलोन आपको मदद इतनी नहीं कर सकता। सपोज कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर मैंने उस काम को करने के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं करी है, कोई अपना स्ट्रक्चर ही नहीं किया है, देन हाउ इट कैन बी पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो, राइट? तो व्हाई इज दिस सो? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इससे हमें फायदा क्या होता है? सबसे पहला इसमें होता है कि हमारे जो आंसर्स है वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज लगते हैं, राइट? सेकंड, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो और भी ज्यादा बूस्ट होता है। थर्ड वन, हमारा जो एक प्रोफेशनल इंप्रेशन है यहाँ पर वो बनता है, हमें एक रियल इम्पैक्ट डाल सकते हैं इंटरव्यूअर के ऊपर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो भी हम बता रहे हैं ये ऑथेंटिक लगता है, इसको हम ऑथेंटिसिटी कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। दूसरा, हम इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पर बताया कि स्टार के बारे में, कि आप सपोज करिए कि आपके पास ये सिचुएशन है कि आपको कोई काम करना है जो कि संडे तक करना है, और उसकी डेडलाइन संडे तक है, मगर वो काम आपका डिले हो रहा है, राइट? आपका ये काम है, मीन्स टास्क आपका ये है कि आपको ये काम संडे तक पूरा करना है। एक्शन की आप क्या एक्शन लोगे? क्या आपने इम्प्रूव किया कि जैसे आपने टीम वर्क पे ज्यादा ध्यान दिया, आपने कोऑर्डिनेशन ज्यादा किया कि जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ काम करके आपकी मदद करें, एंड द रिजल्ट इज दैट कि यू मेड इट ऑन टाइम। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि स्ट्रक्चर और आंसर, इससे आपके जो आंसर्स हैं वो और भी ज्यादा रिलेवेंट लगते हैं, और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, और भी ज्यादा अच्छे से आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, राइट?
तो यहाँ तक आई थिंक अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। ओके। सो आगे यहाँ पर एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली इसको हमें कहाँ कहाँ यूज अच्छे से हम कर सकते हैं, राइट। 1 मिनट। सो इसमें हमारा सबसे मेन चीज वो ये है कि जब भी आप कहीं पर जाते हैं या इस मेथड को आप अप्लाई करते हैं, व्हेनेवर यू गाइस अप्लाई दिस मेथड, इट गिव्स यू क्लियर आंसर, एंड व्हेन यू प्रोवाइड क्लियर आंसर योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन बिकम्स वे मोर हायर देन अर्लियर। एम आई राइट? ओके। सो स्टार मेथड आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसका एक सेंटेंस बताऊं कि जो अभी आपको सिचुएशन बताई उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा हम कह भी सकते हैं कि हमारे पास एक टास्क था जिसकी डेडलाइन संडे को थी, वो डिले हो रहा था, तो मैंने अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया, टीम ने भी काफी मदद करी और उसके बाद में हमारा जो टास्क था ये पूरा हो गया, राइट। ये जो आंसर है जो अभी मैंने आपको बताया, इट लुक्स लाइक कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड। इसमें हमने सिचुएशन की भी बात करी, टास्क की भी बात करी, और हमने यहाँ पर एक्शन की भी बात करी और रिजल्ट की भी बात करी। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू पीपल। ओके गाइज, आई थिंक आपको सब चीज यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रही है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डोंट अप्लाई मोर, अप्लाई बेटर। मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। ओके, आप हमने सोचा होगा या हमने कई सारे दोस्तों से सुना भी होगा कि भाई मैंने इतनी इतनी जगह पे अप्लाई किया हुआ है, कहीं ना कहीं से तो कॉल आ ही जाएगा, राइट। इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वहां पर आपके ज्वाइन करने के बाद आप बस एक किस्मत के भरोसे बैठ जाते हो कि समवन विल कॉल मी एंड आई विल गेट अ जॉब, बट इट एक्चुअली डजंट हेल्प यू। बिकॉज जब आप ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करते हैं, व्हाट यू डू, यू फॉरगेट टू कस्टमाइज योर सीवी, योर रेज्यूमे। मीन्स यू नीड टू कस्टमाइज योर रेज्यूमे फॉर एग्जैक्ट रोल, और एंजिना ने भी आपको पहले इस बारे में जरूर बताया होगा कि आपको अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो एक आपका क्वेश्चन पेपर की तरह होता है, जैसा कि एंजिना ने आपको बताया कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप उसके में जो कीवर्ड्स होते हैं एग्जैक्ट्स आप उनका यहाँ पे यूज कर सकते हो, सो दैट जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड बाय द इंटरव्यूअर, उसमें आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्टेड हो जाए, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर एक और चीज हम ले सकते हैं कि जब भी आप ऐसे करते हैं, जब भी आप अप्लाई बेटर करते हैं, स्मार्टली अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है, आपके पास स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन होता है जिसमें आपको काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की ज्यादा उम्मीद होती है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर 20 कंपनीज में अप्लाई किया, सेम सीवी डाला, जॉब डिस्क्रिप्शन सब कुछ बिल्कुल सेम, किसी में डिफरेंट जॉब प्रोफाइल जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया। मेरा एक फ्रेंड है, उसने सिर्फ 5 कंपनी में अप्लाई किया, मगर वो पांचों की पांचों कंपनीज जिसमें उसने अप्लाई किया दैट मैचेस इस जॉब प्रोफाइल, उन्होंने इन पांचों कंपनीज में अपना जो सीवी है उसको कस्टमाइज भी किया यहाँ पर, प्लस उसने इसमें कीवर्ड्स भी डाले ताकि जो एटीएस सॉफ्टवेयर है उसमें उसकी स्क्रीनिंग में आ जाए। एंड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डीपली रिसर्च द कंपनी बिफोर द इंटरव्यू, उसने उस कंपनी के बारे में समझा भी। आप इससे कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि सपोज अगर आपकी जो एज है वो 21 या 22 ईयर्स है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप 21 और 22 साल पुराने होकर अपने बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो कंपनी के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे बिना उसके बारे में जाने हुए, राइट। सो डीपली रिसर्च दी कंपनी, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि आपको कंपनी के बारे में पता है, आप कंपनी के बारे में जानते हो, यू नो दी कंपनीज गोल्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड हाउ दी कंपनी वर्क्स। इससे क्या होता है, इससे इंटरव्यू के मन में एक लाइन आती है, एंड द लाइन इज दिस कैंडिडेट इज मेड फॉर दिस रोल, कि यही वो कैंडिडेट है जो इस रोल के लिए यहाँ पर बना है, यही वो कैंडिडेट है जिसको हमें हायर करना चाहिए, राइट। मेरा जो टोटल यहाँ पे मीनिंग है वो ये है कहना कि आपको क्वांटिटी पे नहीं, कन्वर्जन को मैक्सिमाइज करना है। कि आप अगर इफ यू आर अप्लाइंग इन 5 कंपनीज, you should get call from at least 3 companies. And why it is possible? It is only possible when you focus on your quality, when you focus on your value, right? आप 50 जगह पे 20 जगह पे अप्लाई कर रहे हो, that shows your desperation, that you are desperately want a job, and that is decreasing your value. First you need to increase your value in your own front eyes, तभी आप अपनी वैल्यू दूसरों से करवा सकते हो। एंड हाउ यू कैन वैल्यू योरसेल्फ, यू कैन सिंपली improve yourself daily, you can simply do mirror practice, you can do virtual interviews like apps like interview.ai, right? You can record yourself,
यू कैन देन इवेल्युएट योरसेल्फ, आप देख सकते हो अपने आप को कि कैसे आप यहाँ पर सही से कर सकते हो, कैसे आप एग्जैक्ट रोल के लिए जैसा आपने बताया है वैसा आप यहाँ पे कर पा रहे हो, राइट। दूसरा एक चीज यहाँ पर हम बताते हैं कि जब भी आप मिरर प्रैक्टिस करते हैं तो मिरर प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में क्या होता है, आप नहीं बोल पाते हैं एंड दैट इज फाइन। हर कोई नहीं बोल पाता, हर कोई, ऑलमोस्ट सभी नहीं बोल पाते, सबको दिक्कत होती है। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट सिंपली इम्प्रूव योर सेल्फ डेली बाय 0.000000001%। yes, you heard it right, 0.0000001%। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को थोड़ा सा भी डेली इंप्रूव करोगे ना, देन बिलीव मी वन डे विल कम कि आपने काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया होगा। यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड दैट मच, 2 to 5 hours a daily, you just need a consistency in your life, right? Okay, so यहाँ तक अगर आपको सही से सारा समझ में आ रहा है, so please give me a thumbs up ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं रोल टारगेटिंग के ऊपर। रोल टारगेटिंग मीन्स कि वी आर टारगेटिंग द रोल्स इन विच रोल वी आर मोस्ट वी हैव इंटरेस्ट, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा हमारा प्रेफरेंस है, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट है। बिकॉज सिंपली फाइनेंस का अगर कोई कैंडिडेट है और वो जॉब तो सेल्स में भी कर सकता है, बट जस्ट थिंक कि क्या वो एग्जैक्टली वैसी ग्रोथ वहां पे कर पाएगा जैसी वो शायद फाइनेंस में कर लेता, राइट? नहीं कर पाएगा, सिंपल। सो इसीलिए टारगेट योर रोल्स इन विच रोल यू आर सुइटेबल, इन विच रोल यू आर प्रेफरेंसिंग, राइट? जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई बेटर, नॉट ब्लाइंडली, यू कैन अलाइन योर सेल्फ टूवर्ड्स द जॉब रोल। यहाँ पर भी आपको मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम सबको पता है कि जमीन के नीचे पानी मिलता है, राइट? अगर हम यहाँ वहाँ अप्लाई कर रहे हैं 20 कंपनीज में, 25 कंपनीज में बस अप्लाई कर दिया सिंपली टू गेट अ जॉब, इट सिंपली मीन्स कि हमने एक यहाँ पर भी बोरिंग कर लिया, दूसरी जगह पर भी 10-10 फीट का कर लिया, मगर पानी नहीं निकला, राइट? मगर जब आपको पता है कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपको पता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आपको पता है कि कौन से वो इंटरेस्ट हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हो, देन यू कैन पुट ऑल योर एफर्ट ओनली इन वन डायरेक्शन। और जब आप एक ही डायरेक्शन पे पूरा यहाँ पे डग होल करोगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके सारे एफर्ट्स जो है वो एक ही जगह पर होंगे, राइट? वो यहाँ वहां नहीं होंगे, ठीक है ना? यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज गाइस गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन कंटिन्यू फॉर अवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, थैंक यू। सो now our next slide is rejections are reports, not the results, right? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड यू गो टू द डॉक्टर, राइट? डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको अभी ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कहोगे? ओके, आई टेक मेडिकेशन एंड फील बेटर, या फिर आप ये कहोगे कि माई लाइफ इज ओवर? आप सिंपल से वहां पे मेडिकेशन लोगे और अपने आप को सही करोगे। सिंपल इज द रिजेक्शन। मगर क्या हम रिजेक्शन पे ऐसा लेते हैं? नहीं। वी थिंक दैट रिजेक्शन इज अवर इंसल्ट, वी थिंक दैट रिजेक्शन इज अ प्रूफ दैट वी आर फेलियर। बट सिंपल इन वन लाइन आई वुड लाइक टू से कि रिजेक्शन इज नॉट योर इंसल्ट और रिजेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू योर इंसल्ट। रिजेक्शन आपको कुछ सिग्नल देता है, एंड व्हाट सिग्नल इट गिव्स, इट मे बी योर रेज्यूमे इशू, दैट व्हाट नीडेड टू बी करेक्ट। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको अपने रिज्यूमे में करेक्शन करने की जरूरत है। मे बी आपने अपने रिज्यूमे को उस तरीके से कस्टमाइज नहीं किया जिस तरीके से आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे थे। सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन गैप। मे बी यू व्हाट यू वांट टू टेल, यू आर नॉट डिस्क्राइबिंग इट करेक्टली। आप जो बताना चाह रहे थे वो आप सही से नहीं बता पाए, कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। थर्ड वन इज पोजिशनिंग प्रॉब्लम, मीन्स हैविंग हाई स्किल्स बट टारगेट रॉन्ग ऑडियंस, राइट? आपके पास हाई स्किल्स तो है, आपके पास जॉब प्रेफरेंसेस तो है, आपके पास इंटरेस्ट तो है, मगर जहां पर आप एफर्ट डाल रहे हैं, जहां से आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, वहां पर आपकी एक तरीके से कह सकते हो कि रॉन्ग ऑडियंस है। सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। थर्ड वन हम कह सकते हैं स्किल्स मिसमैच। अगेन कि व्हाट स्किल्स, दिस इज द प्रॉब्लम, स्किल्स मिसमैच, कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू एक्चुअली फेसिंग, व्हाट skills you actually required for that job are not there in your resume or CV, right? ये भी यहाँ पर हो सकता है। दूसरा अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कंपनी आपको देखना चाहती है आपके अंदर, आप वो प्रोवाइड ना करके बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है ना?
ये भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है। इसका हम सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप फाइनेंस में जा रहे हैं, आप फाइनेंस में अपनी जॉब प्रोफाइल को देख रहे हैं, आपने पांचों कंपनी जहाँ पे अप्लाई किया है वो सब फाइनेंस की है, राइट, बट योर अचीवमेंट्स, योर एक्सपीरियंस एंड योर many I would like to say things that you have done are in the sales field, so it is totally unrelevant information। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो जिसकी वजह से आपके साथ रिजेक्शन आपको देखने को मिला। तो इसका सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं और इससे हमें फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन इसका ये है कि व्हाट आई कैन इम्प्रूव। ओके, एक लाइन यहाँ पर कहना चाहूंगा, आप लोगों ने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर सुनी है आपने तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन कंटिन्यू। ओके, सो मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। एक्चुअली ये सच नहीं है, ये आधा सच है। मिस्टेक इज नॉट द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, करेक्टिंग योर मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, राइट। आप मिस्टेक कर रहे हो मगर उसको करेक्ट नहीं कर रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, आप उन्हीं मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट करते रहोगे और इसकी वजह से आप बार बार रिजेक्शन लेते रहोगे। मेन चीज है कि आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, व्हाट आई कैन इम्प्रूव, और उसके बाद उस मिस्टेक को करेक्ट करो ताकि आपका जो लूप होल बन गया है कि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं उस मिस्टेक को, वो मिस्टेक आपकी दोबारा यहाँ पर ना हो पाए। ठीक है, सेकेंड वन इज जो कि हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि मनोज और दीपक दो लोग हैं, राइट। मनोज जो है, मनोज यहाँ पर गया, उसने अपने बारे में बताया कि सर मैंने ये किया है, फाइनेंस के लिए आपके यहाँ आया हूँ, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर सेल्स में है, वहाँ पे मैंने ऐसा किया, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम फिट फॉर योर जॉब, मेरा डेडिकेशन बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ दीपक है, दीपक यहाँ पे ये कहता है कि सर आई हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, इतने सालों तक या इतने महीनों तक मैंने यहाँ पे किया है, प्लस मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस हैं, प्लस मैंने ये सब चीज़ें भी करी है, प्लस ये सिचुएशंस पहले मेरे साथ आई थी, उनके मैंने ऐसे यहाँ पे सोल्यूशंस प्रोवाइड कराए। तो बेसिकली यहाँ पे चांसेस है वो दीपक के ही होंगे सिलेक्ट होने के। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहाँ पे मनोज वो सारी बातें बोल रहा था जो ऑलमोस्ट आजकल हम सभी बोलते हैं कि सर आई एम हार्ड वर्कर, आई एम अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, उसने ये सब ना बोल के उसने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर किए। सो दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज व्हाई यू नीड टू फोकस on your mistakes and correcting those mistakes, not only the finding the mistakes, correcting the mistakes, that is really important. So rejections are your reports, these are your feedback। क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले अंजीना ने आपको बताया होगा कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि प्रैक्टिस प्लस फीडबैक इज इक्वल टू इम्प्रूवमेंट, राइट। यहाँ पर आप एक चीज और भी कह सकते हो कि यहाँ पर आप मिस्टेक्स को करने के बाद उसको करेक्ट करें और फिर अपना फीडबैक लें कि आपने कैसे इसको इम्प्रूव किया, तब जाके आप इम्प्रूवमेंट होंगे, राइट। मिस्टेक्स ढूंढना इज नॉट अ बिग इशू, मिस्टेक्स को करेक्ट करना इज अ बिग इशू। अगर यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगेन सो वी विल कंटिन्यू। ओके, राइट। सो यहाँ तक आपको सब समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। अब हम बाकी लास्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी आज की, जो कि है द 14-day एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट। ये एक्चुअली हमारा आज की वर्कशॉप का जो टोटल, हमने आपको कई सारे भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताई, सोल्यूशंस बताई। अब जो ऐसा सोल्यूशन की नेक्स्ट 14 डेज में आप अपने आप को जहाँ देखोगे, यू विल फाइंड योर सेल्फ अ वेरी 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 इम्प्रूव्ड वर्जन, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर आपके लिए 14-day एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें डे 1 to 3 में आपका जो है वो है अपना रेज्यूमे फिक्स करें, एग्जैक्ट पोजीशनिंग करें। एग्जैक्ट पोजीशनिंग का मतलब आप ऐसे पोजीशनिंग आप ऐसे समझ लो कि आप अपनी इमेज कहाँ पर बनवाना चाहते हो दूसरों के सामने, कि दूसरा अगर आपको देखे तो वो कहाँ देखे कि आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, आप सेल्स में एक्सपर्ट हो, या किस फील्ड में एक्सपर्ट हो, राइट। सो दैट इज द पोजीशनिंग। ओके, जस्ट 1 मिनट। सो फिक्स योर रेज्यूमे, अपने रेज्यूमे को रीडिजाइन करें, लिंक्डइन को अपडेट करें और अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग करें, बिकॉज योर नेम इज योर ब्रांड। एंड जितना ज्यादा आप अपनी ब्रांडिंग करोगे आप उतनी ही ज्यादा अपनी वैल्यू इंक्रीज करोगे, और जितनी ज्यादा आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करोगे, आई एम 100% डैम श्योर आप उतने ही ज्यादा आगे चल के सक्सेस होगे, राइट। तो ये आपका 1 to 3 days का है जो कि आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। Second one is कि after fixing your resume, updating your LinkedIn and positioning and professional branding means branding yourself, you can now do the job targeting. Job targeting means कि आप किस
फील्ड की जॉब में जाना चाहते हो, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है। नॉट लाइक कि मेरे पास अगर मेरे लिंक्डइन पे कोई 20 नई जॉब्स आई हैं तो मुझे उन 20 जॉब्स में अप्लाई करना है। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको क्या करना है, आपको उन 20 में से आइडेंटिफाई करना है कि विच वन मैचेस योर प्रेफरेंसेस, which one matches your interest, and which one exactly requiring the skills and qualifications that you have. ओके, सो आप ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, नेटवर्क आउटरीच, लिंक्डइन पे अपने कनेक्शंस बढ़ाइए, अपने नेटवर्किंग का फायदा उठाइए, लोगों से रेफरेंस लीजिए, लिंक्डइन पे लोगों से कहिए कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो उसको एंडोर्स करें यहाँ पे, राइट। यहाँ तक अगर आपको सही से पूरा समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप वंस अगेन। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा हो गया कि हमने अपना रेज्यूमे भी डिजाइन कर लिया, हमने जॉब टारगेटिंग भी कर ली, हमने अपना नेटवर्क आउटरीच भी कर लिया। नाउ दी 8 to 10 डे हमारा जो प्लान है वो है मॉक इंटरव्यू, राइट। वी कैन डू दी मॉक इंटरव्यू, वी कैन डू मॉक इंटरव्यू बाय डूइंग मिरर प्रैक्टिस। हम वर्चुअल इंटरव्यूज भी कर सकते हैं अपने, राइट। जैसे वर्चुअल इंटरव्यूज में एक ऐप आपको सजेस्ट करूंगा मैं, interview.ai। वहां पर आप जाके अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहां पर जो चैट बॉट होता है वो आपका पूरा इंटरव्यू लेता है प्रॉपर तरीके से, प्लस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करता है कि आपका कैसा रहा, क्या चीज आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, एंड इन विच फील्ड यू डन द एक्सलेंट जॉब, राइट। नेक्स्ट वन इज स्टार प्रैक्टिस, जो अभी मैंने आपको बताई थी, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, राइट। इन चीजों पे भी सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टार प्रैक्टिस करें, अपने आंसर को स्ट्रक्चर करें। इसका आप ऐसे एग्जांपल समझ लो कि अगर मुझे कहीं ट्रिप पे जाना है, राइट, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मुझे ट्रिप पे जाना है और मैं जा सकता हूँ ट्रिप पे, मगर क्या मैं उस ट्रिप को वाकई ही सक्सेसफुली एंजॉय कर पाऊंगा जब तक मैं उस ट्रिप को स्ट्रक्चर ना करूं, उस ट्रिप की प्लानिंग ना करूं कि मुझे कैसे जाना है, किसके थ्रू जाना है, कहाँ पे स्टे करना है, कौन कौन सी जगह पे जाना है, राइट। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करिए। कॉन्फिडेंस really helps you, but confidence alone cannot get you a impressive response, right? So अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करिए। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन रिफाइनमेंट, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करिए। हम सब ने ये देखा है कि ज्यादातर हमने देखा ये कि कोई ना कोई होता है जो क्लास में काफी ज्यादा टॉपर होता है, काफी अच्छे मार्क्स आते हैं उसके, मगर वो स्टेज पे जब उसे बुलाते तो वो नहीं बोल पाता है, राइट। या फिर वो कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाता है। या आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे आता तो सब कुछ है मगर मैं लोगों को समझा नहीं पाता हूँ, राइट। सो आपको इसी चीज पे ध्यान देना है। अगर आपके अंदर भी ये फ्लॉस है तो आपको इसी चीज पे ध्यान देना है कि यू नीड टू रिफाइन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है सो दैट यू कैन एक्चुअली डिलीवर व्हाट यू वांट टू डिलीवर, राइट। आप जो समझाना चाहते हैं लोगों को वो एक्चुअली समझा पाए वहां पे, ओके। So level 2 and also apply strategically, right? वही बताया कि आपके जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, आप उसी जगह पे स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करें। डोंट अप्लाई मोर, अप्लाई स्मार्टली, राइट। नाउ 11 to 14 days रिफाइन एंड इम्प्रूव बेस्ड ऑन मार्केट फीडबैक। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, डिड यू रियली इम्प्रूव और नॉट, आपने क्या क्या एक्शंस लिए, राइट। दूसरा, आपकी जो जो वीकनेसेस है उसको करेक्ट करें, आपकी जो जो मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को करेक्ट करें, बिकॉज मिस्टेक करना इट्स नॉर्मल, हर कोई करता है और हम तो हर एज पे मिस्टेक करते हैं। बीइंग ह्यूमन, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि जिसने एक टाइम के बाद कभी मिस्टेक ही ना करी हो। मिस्टेक हर कोई करता है, राइट। बट इम्पॉर्टेंट व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि आप अपनी उस मिस्टेक को इम्प्रूव करें, राइट। सो मिस्टेक करेक्शन या फिर वीकनेसेस करेक्शन। दूसरा आप यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक चीज और भी कह सकते हैं कि जब आप अपना रिफाइन बेस्ड मार्केट फीडबैक करते हैं तो उससे आपके अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं, आपके अंदर उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक लगता है कि यस नाउ यू कैन कम्युनिकेट प्रोफेशनली, राइट। बिकॉज सिलेक्शन इज नॉट अ लक, इट इज अ रिपीटेबल प्रोसेस। सिलेक्शन आपका लक नहीं है, राइट, ये एक रिपीटेबल प्रोसेस है। Repeatable process means it may be possible that at one place you are get selected and in another place you get rejected. So it's completely, और जैसा कि अंजीना ने आपको बताया ही है कि जिसने आपका इंटरव्यू लिया है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आपको नहीं जानता, राइट। तो उसमें आपको कोई पर्सनली वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है,
he or she is rejecting you, क्योंकि हो सकता है आप अपने आप को पोजीशन अच्छे से नहीं कर पाए हो सकता है आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अच्छे से वहां पर कम्युनिकेट ना कर पाए हो, सो दैट इज द रीजन। तो इस पर काम करें थोड़ा सा, राइट? अभी तक अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, सो गाइस प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगेन। ओके, थैंक यू। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ ही गया होगा, ऑलराइट। सो आज हमारे यहाँ पर ये इतना ही था। आई होप कि आपको हमारी इस वर्कशॉप से काफी ज्यादा चीजें समझ में आई होंगी, और कोशिश तो यही रही है हमारी। वन फाइनल थिंग जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें, अगर आपको हमारा ये जो वर्कशॉप है ये काफी अच्छा लगा, आपको लगा कि यस हम वाकई में हम आपको वो चीज प्रोवाइड करवा पाए जिस चीज के लिए आपने हमें अपना टाइम दिया, यू गिव अस आवर वैल्यूएबल टाइम, सो आप यहाँ पर हमारे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन 45 मिनट्स 1 आवर की है, आप देख सकते हैं, राइट? और हमारे कुछ एडवांस प्रोग्राम्स भी हैं जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन, जो आप किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे इनकी फीस और कौन कौन से मॉड्यूल्स कवर्ड हैं वो सभी भी आपको दिख ही रहे होंगे इसकी स्क्रीन पर। सो फाइनली स्टार्ट योर जर्नी विद अस, स्टार्ट योर जर्नी विद अस इन्फिनिटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिकॉज एंजीना ने भी बताया और मैं भी बता रहा हूँ, वी आर हेयर फॉर योर स्किल एनहेंसमेंट, वी आर हेयर टू एग्जैक्टली फाइंडिंग योर प्रॉब्लम्स, व्हाट मिस्टेक्स आर यू मिसिंग, आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं, आप कौन सी आप मिस्टेक्स हैं जो नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं, क्योंकि वी रियली वांट टू हेल्प यू पीपल, राइट? एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप कि आपने यहाँ पर इतना दिया होगा, अपना टाइम जो भी दिया है उसमें आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।